کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ آپ جڑ چکے ہیں حیا جاوید کے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں آج کا خبر نامہ 27 جون 2024 عیسوی بمطابق 20 ذی الحج 1445 ہجری بروز جمعرات۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ ڈوڈا ضلع کے گنڈوا علاقے میں سنو کے جنگلات میں ملیٹنٹ اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم آرائی میں 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈوڈا کے گنڈوا سنو جنگلاتی علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فوج اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس دوران انہوں نے وہاں سے فائرنگ کی، جس کے جواب میں فوج نے بھی مورچہ زن ہو کر جوابی کارروائی کی اور علاقے میں کچھ وقت تک جاری طرفین کے مابین جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارے گئے ملیٹنٹوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہے، تاہم ان کی فوری طور شناخت نہ ہو سکی۔ ترجمان نے مزید اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈوڈا جنگلات میں مسلح جھڑپ کے دوران 3 ملیٹنٹ مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارے گئے ملیٹنٹوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہے اور جنگلات میں وسیع پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری ہے۔ کل پردیش کانگریس کمیٹی سری نگر کے صدر دفتر پر یوتھ کانگریس نے نیٹ امتحانات میں امتحان سے قبل ہی پرچے منظر عام پر آنے کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے ملوث افراد کو فوری طور سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجیوں کے مطابق موجودہ دور حکومت میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی شکایتیں موصول ہوئی، لہذا ایسی بدت سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے۔ بند کرو بند کرو بند کرو پیپر لیک بند کرو بند کرو بند کرو پیپر لیک بند کرو بند کرو بند کرو گو ڈاؤن مودی گو ڈاؤن گو ڈاؤن گو ڈاؤن مودی گو ڈاؤن گو ڈاؤن مودی گو ڈاؤن۔ ہم یہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے جو ریسنٹلی نیٹ اسکیم سامنے آیا ہے اس کے خلاف۔ پچھلے 5 سال میں آپ دیکھ لیجئے بی جے پی کی وجہ سے کتنے پیپر لیکس کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ مودی جی بڑے بڑے جملے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے رشیا یوکرین وار رکوا دی، فلسطین غزہ وار رکوا دی، لیکن مودی جی کیا آپ دیش میں پیپر لیک کی سمسیا کو نہیں روک سکتے؟ مودی جی کو یوتھ نے ریجیکٹ کیا ہے، یہ اسی کا بدلہ لے رہے ہیں یوتھ سے۔ ہم چاہتے ہیں مودی جی ریسپانسبلٹی لے اس کی، ان کو بس اپنی سرکار کی پڑی ہے جو سرکار وینٹیلیٹر پہ ہے، جو کبھی بھی گر سکتی ہے۔ ہمارا مین مدعا یہاں پہ ہے مودی جی جو یہ نیٹ کا اسکیم ہوا اور جو پیپر لیکس کے معاملے سامنے آ رہے ہیں، مودی جی ریسپانسبلٹی لے اس کی، اور جو ایجوکیشن منسٹر ہے، ان پڑھ ایجوکیشن منسٹر ہے، وہ اپنا استعفیٰ پیش کرے۔ جو یہ نیٹ اسکیم کے خلاف پروٹیسٹ ہے، یہ پروٹیسٹ این ڈی اے سرکار کے خلاف ہے، وہ سرکار جو پیپر لیک کروا رہی ہے، جن نے بچوں کا فیوچر خراب کر رکھا ہے، جنہوں نے جس کا ایپی سینٹر گجرات میں ہے، گجرات میں پیپر لیک اسکیم ہوا، ایک پیپر 16 لاکھ روپے کا نکالا گیا، اور جس پرنٹنگ پریس میں یہ پیپر لیک ہوا وہ بھاجپا نیتا کا ہے۔ شہر خاص کے بوہری قدر علاقے میں گزشتہ منگل کو لگی بھیانک آگ میں کروڑوں روپے کی مالیت کا ساز سامان، رہائشی مکانات، درجنوں دکان اور ایک مسجد شریف کی فوری آباد کاری کے لیے سیاسی، سماجی، مذہبی اور تجارتی حلقوں کا مسلسل جائے واردات کا دورہ برابر جاری ہے۔ سبھی کی مانگ یہ ہے کہ متاثرین کی فوری باز آباد کاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائے۔ کل نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی کی سینئر لیڈر آسیہ نقاش کے علاوہ کئی اور وفود نے جائے واردات کا دورہ کیا۔ بنی ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک سلنڈر پھٹا ہوا ہے۔ وہ کیسے ہوا، کیوں یہاں پہ ایسا کیا گیا، کیا پریکاشن لیے گئے تھے، اس کی طرف ان کو انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا۔ وہ گیس سلنڈر اسی دکان میں تھے، اسی میں یہ بلاسٹ ہوا، جب ایک پھٹ گیا اس کے ساتھ باقی بھی پھٹ گئے، مگر نقصان یہاں غریبوں کا ہوا ہے، جنہوں نے ساری زندگی یہاں پہ گزاری ہے، آج وہ بے گھر ہو گئے۔ اس سے حکومت سے میں بھی اپیل کروں گا اور لکھوں گا بھی کہ ان کی فوراً امداد کی جائے اور انویسٹیگیشن کیا جائے، اس کو کیسے روکا جائے کہ آگے کبھی ایسی چیز نہ ہو۔ میں ابھی پرسوں مسجد شریف میں پہلے آگ امداد ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ سلنڈر پھٹ گئے ہیں، تو وہاں پہ یہاں گھر والے ہیں اور 2 کمپلیکسز ہیں، یہاں انٹرنیشنل لیدر ورکس ہیں، اندر کے جو گھر ہیں کافی غریب ہیں، کافی متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنا گزارا
कुल्फ़ी वगैरह जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उससे गुजारा करते हैं। उनका जितना भी कॉमोडिटी था, जितना भी उनका मटेरियल था, रॉ मटेरियल वगैरह, और उनके मकान इतने कमज़ोर मकान जो पहले ही से हैं, वो पानी के दबाव में आके वो नीचे बिल्कुल ज़मीन दोस्त होने को मुझे लगता है तैयार है। तो रिलीफ है, उनको तुरंत मिलना चाहिए। वो उसमें डीसी मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करूंगी, उनकी रिक्वेस्ट करूंगी। पहले तो मैं ये चाहती थी कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुद आ जाती यहाँ, मगर अब ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उनसे इल्तिजा करते हैं कि इनका जो रिलीफ है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आप देखें कि इनके घर की, इनके बच्चों की, और एक बच्चे का बाजू कट गया है जब उसने अपने घर का, गरीबी की वजह से उसने अपने घर का कुछ सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो बाजू है वो कट गया है। 17 स्टिचेस उस बच्चे को आए हैं, अभी वो ड्रेसिंग करने के लिए गया है वो बच्चा। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, हमारी ज़ाती हर पूरे आवाम की तरफ से हम इल्तिजा करेंगे, पार्टी की तरफ से, आवाम की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, कि इनका जो रिलीफ है वो काफ़ी बढ़ना चाहिए और लकड़ी इनको मिलना चाहिए। और म्यूनसिपल कमिश्नर जो आएंगे तो ताकि वो इनको देखें जल्दी से, ताकि ये जो बाहर का है, जो कॉम्प्लेक्स वाले, वो कहते हैं कि हमें इजाज़त मिलनी चाहिए इसका काम शुरू करने का, बिल्डिंग का। और अंदर के जो गरीब लोग हैं, तो मैं उनके लिए तो क्या बात, उनके लिए तो मुझे लगता है हर एक कोई भी बात करे। बाकी श्रीनगर में मुनक़िद हुआ G20 इजलास का सयाहती नक्शे को तब्दील करने में अहम रोल, सयाहती सनत पर तमाम दाग धब्बे हट गए। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और खूबसूरती के सफ़ीर बन गए। गैर मुल्की सयाहों की तादाद काफ़ी बढ़ गई। शहर में सयाहों को राग़िब करने के लिए टोटो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। पोलो व्यू की तज़यीन और आराइश से कारोबार 3 गुना बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में जराइम की शरह मुल्क में सबसे कम, हर किसी के लिए महफूज माहौल, लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में एक वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में मौजूद सामर्थ्य का अवसरों से एक अच्छा मिलन इन दिनों हुआ है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही है जिससे हस्तशिल्पों की विविधता को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराने में हमें कामयाबी धीरे धीरे मिल रही है। जैसा कि स्टेट शो की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिलक्षित हो रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के यूनिक सेक्टर्स पर विशेष बल दिया है ताकि यहाँ की इकॉनमी को सुदृढ़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर, जैसे मेरे पूर्व भी अभी बताया गया, सैफरन, आलमंड, चेरी, ये उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। 90% वॉलनट का उत्पादन यहीं होता है। 70% एप्पल का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर के ऐसे 17 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। उनमें से पश्मीना, कारपेट, कनी साल, बासमती राइस, उधमपुर की कलाड़ी, सोजनी, बसोहली पेंटिंग, पेपर मासी, वॉलनट वुड कार्विंग जैसे उत्पादों ने पूरी दुनिया में अब अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ज़मीनी सूरत हाल और अमन अमान में बेहतरी ने जम्मू कश्मीर में सयाहों की तादाद में काफ़ी इजाफा किया। गुज़श्ता 2 सालों में नुमायां तब्दीलियाँ देखी। इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च। चीफ सेक्रेटरी। पार्लियामेंट में हाँ और ना की गूंज के बीच ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के तौर पर दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि हमें उम्मीद है कि वो लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए ऐवान में बड़ा किरदार अदा करेंगे। 17वीं लोकसभा को पार्लिमानी तारीख का सुनहरी दौर समझा जाएगा। मुल्क के मुस्तकबिल को सिमत देने में अहम किरदार अदा किया।
पार्लियामेंट में ओम बिरला की सरबराही में जो तारीखी फैसले हुए वो मुल्क की मीरास है और उनकी भी वजीर अज़म नरेंद्र मोदी। ज़िला श्रीनगर से मुंतखब पार्लिमानी मेंबर आगा सईद रूहाला ने कल पहली बार पार्लियामेंट में खिताब करते हुए मुफस्सल तरीके से वादी कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए वादी कश्मीर के मसाइल को पार्लिमानी नुमाइंदों के सामने उजागर किया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे। सड़कें अच्छी नहीं तो हाईवे एजेंसियों को टूल नहीं लेना चाहिए। अगर गड्ढों कीचड़ वाली सड़कों पर टूल जमा किया जाए तो लोगों की तरफ से रद्द अमल आएगा ही। नितिन गडकरी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक बार फिर कश्मीर का मसला गूंज उठा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिल तनसीक हिस्सा है और रहेंगे। बेबुनियाद बयानबाजी से हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी मुंदुबी के बयान पर भारत का जवाब। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सजेंद्रा कुमार ने रियासी जिला का दौरा किया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फौज अफसरान और एहलकारों से भी बातचीत की। एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल केस में गिरफ्तार मियां कोयूम को 1 जुलाई तक पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। कश्तवाड़ में मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस पुलिस कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। हुक्मनामा बाज़ाब्ता तौर पर जारी। सांबा में कैंप के अंदर हादसाती ग्रेनेड धमाके में फौजी एहलकार शदीद जख्मी। पठानकोट में 2 मुसल्लह अफराद की नकल हरकत की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर। मुनशियात और समाजी बिदात का बढ़ता रुझान तशवीशनाक और लम्हा फिक्रिया। इत्तेहाद व इत्तेफाक में ही अक़वाम की कामयाबी और कामरानी का राज मुज़म्मिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आखिर में ये खबर के इंदर कल्चरल फोरम सोनावारी कश्मीर के ज़ेर एहतमाम गदेर कॉन्फ्रेंस का इनकाद। वादी कश्मीर के मायनाज शुअरा, मुफक्किरीन और उलमा ने शान विलादत पर मुफस्सल रोशनी डाली। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।